ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس رکھے نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ معصوم سی لڑکی اپنے بستر پر بیٹھی ناول کے صفحات میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کتابوں سے عشق کرنے والی، حقیقی دنیا سے دور، اپنی ہی زندگی میں گم اور بے حد خوش۔ گہرے نیلے رنگ کا کمبل اس کے گھٹنوں پر پڑا تھا اور اس کی لمبی زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد وہ کسی جملے پر رک کر مسکراتی اور پھر کہانی میں ڈوب جاتی۔ کمرے کی فضا پرسکون تھی، بس گھڑی کے ٹک ٹک اور کبھی کبھار ہلکی سیاہٹ سنائی دیتی جسے ہوا پردوں سے کھیل رہی ہو۔ لیکن اچانک پردے کے قریب سرسراہٹ ہوئی، وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں تھمی کتاب کانپ گئی۔ کچھ تھا جو اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، آنکھیں بے اختیار پردے کی طرف اٹھیں۔ دل عجیب سے انجانے کے خوف سے کانپنے لگا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی، اگلے ہی پل پردہ زور سے ہلا، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر ہٹایا ہو۔ اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلنے کو تھی کہ اچانک ایک شخص بالکنی کے راستے اندر داخل ہوا۔ وہ سانس روک کر وہیں ساکت رہ گئی۔ دل کی دھڑکن سینے سے باہر آنے کو تھی۔ سامنے کھڑا شخص، چوڑی چھاتی، کثرتی وجود، گھنی سیاہ پلکوں کے سائے میں چمکتی گہری آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اعتماد سے، نہ ڈر۔ جب اس کی کانپتی ہوئی آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی، حیدر، اس کے لب کب کب آ گئے۔ خوف نے اس کی آنکھوں میں سایہ ڈال دیا۔ آپ یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسی جرت بھی کر سکتا ہے۔ حیدر سلیمان ہلکا سا مسکرایا، ایک دل موہ لینے والی مگر شرارت بھری مسکراہٹ۔ میں اپنی محبت کو دیکھنے آیا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ اپنی جیکٹ جھاڑتے ہوئے بولا، جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ ابرش نے جلدی سے ناول سینے سے لگایا، جیسے وہ اسے کسی حفاظتی ڈھال کی طرح استعمال کر رہی ہو۔ بابا نے منع کیا ہے آپ سے ملنے سے، پلیز آپ چلے جائیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، پچھلی بار بھی انہوں نے کتنا طوفان کھڑا کیا تھا۔ اس کا لہجہ ذرا سہما ہوا تھا۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ مصنوعی غصہ آ گیا۔ اب اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں خود جا کر تمہارے بابا سے مل لوں گا، پھر یہاں کھڑی ہو کر ڈرتی رہنا۔ آواز میں ایک عجیب سنجیدگی تھی، جیسے وہ واقعی ایسا کر گزرے گا۔ ابرش نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، دل میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر نہ ڈر ہے، بے باک ہے، جو سوچتا ہے کر گزرتا ہے۔ نہیں، اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ گھبرا گئی تھی، جان تو جیسے سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ حیدر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ ابرش نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر بستر کی پشت تھی اور سامنے حیدر کی گہری آنکھیں جن میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ ڈر رہی ہو؟ وہ ہلکی سی سرگوشی میں بولا تو ابرش نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور ناول کے صفحات الٹنے لگا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ جانتی ہو، تم جب خوفزدہ ہوتی ہو تو تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے، وہ مخمور آواز میں بولا، اور ابرش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پلیز، وہ آہستہ سے بولی، آواز میں بے بسی تھی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے شانوں کے قریب جھکایا۔ اب تو میں نہیں جا رہا، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ ابرش نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے خوف کا مطلب ہی معلوم نہیں، بس اگلے کو خوف دلانا جانتا ہے۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر ماحول میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ ابرش کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے بعد دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی بھی پل وہاں سے کوئی آ جائے گا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود لمس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ حیدر نے اس کی نازک کلائی تھام رکھی تھی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ محفوظ ہے، وہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ابرش کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ پلیز حیدر، اس کی آواز میں لرزتی بے بسی تھی۔
वो एक बार फिर खौफ से लरस कर बोली, उसे बिल्कुल इल्म नहीं था ये शख्स अचानक ऐसे उसकी जान अटकाएगा। हैदर ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। डरना बंद करो अब्रश, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा बहुत जल्द। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक पुख्ता अज़्म। अब्रश ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। ये मुमकिन नहीं है, बाबा कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ कहा है आपके ख़ानदान से किसी किस्म की वाबस्तगी रखी, उसके साथ हमारा ताल्लुक ख़त्म। हैदर ने धीरे से उसकी उंगलियों पर बोसा दिया। अब्रश के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। उसके गुलाबी गाल मजीद सुर्ख हो गए और वो नज़रें झुका गई। हैदर ने एक गहरी सांस ली और मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस मेरा साथ देना। वो यकीन भरे लहजे में बोला। अब्रश ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग रही थी। लेकिन चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजा। अब्रश की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका दिल हलक में आ गया। खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने तेज़ी से अपना हाथ खींचा और बौखलाकर दरवाजे की तरफ देखा। हैदर ने झटके से उसका बाजू थाम लिया। पुरसकून रहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी आवाज़ में एतमाद था, मगर दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक माहौल को मज़ीद कशीदा कर रही थी। अब्रश का चेहरा जर्द पड़ चुका था। कोई जानता है कि आप यहाँ हैं? उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकली। कहीं दरवाजे पर बाबा तो नहीं? ये बोलकर वो सांसें रोक चुकी थी। आंखें बाहर उबलने को बेताब थीं। हैदर ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रख रहा हो। तुम कुछ मत कहो, मैं देखता हूं। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अब्रश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। हैदर प्लीज। बस, हैदर ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े लोगों की मौजूदगी ने कमरे में मौजूद तमाम हवा को साकित कर दिया। जफ़र साहब, सुलेमान साहब, रामीन बेगम और शाइस्ता बेगम चारों दरवाजे पर खड़े थे और जफ़र साहब का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। दिमाग 7वें आसमान पर था। अब्रश का दिल बैठ गया। वो खौफजदा नज़रों से दरवाजे पर खड़े अपने वालिद को देखने लगी। जफ़र साहब का गुस्से से बिगड़ता चेहरा देखकर वो एक कदम पीछे हट गई। ये क्या कर रही हो तुम? बंद कमरे में अपने कज़न के साथ ये रंगरलियां? अब्रश की आंखों में बेबसी तैरने लगी। बाबा। चुप। जफ़र साहब धाड़े। देखो सुलेमान, तुम्हारा बेटा क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है, हमारे उसूलों को रोंद रहा है। बहुत बोलते हो तुम कि तुम्हारा बेटा बहुत पारसा है। देख लो अब इसकी करतूत क्या है, क्या करता फिर रहा है ये। हैदर की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो एक कदम आगे बढ़ा और पूरी शिद्दत से गरजा, खामोश हो जाएं, क्या बदतमीजी लगाई हुई है आपने, ये किस तरह बात कर रही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हैदर ने गुस्से से अपने वालिद की तरफ देखा, फिर जफ़र साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई गैर नहीं हूं मैं इसके लिए, बीवी है वो मेरी। अगर मैं उसके कमरे में आ भी गया तो इसमें कौन सी शर्म की बात है। सुलेमान साहब का चेहरा सख्त हो गया। वो आगे बढ़े और हैदर का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। चुप हो जाओ हैदर, चलो यहां से। अब्बा। हैदर ने उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर सुलेमान साहब की गिरफ्त मजबूत थी। मैंने कहा चलो सुलेमान। उनका हुक्म हतमी था। हैदर ने एक आखिरी नज़र अब्रश पर डाली। वो साकित खड़ी थी, आंखों में खौफ, बेबसी और कुछ और जो हैदर समझ नहीं सका। फिर वो ज़बरदस्ती उसे वहां से ले गए और इस बार वो जानबूझ कर गया था, जो इरादा वो कर चुका था उससे वो पीछे हटने वाला नहीं था। अब उसकी बस हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को इस तकलीफ से दो चार नहीं होने दे सकता था। वो हैदर सुलेमान था, ना कभी उसने किसी की सुनी थी और न कभी वो किसी आगे की सुनने का इरादा रखता था। कमरे में अब सिर्फ सकूत था, मगर ये खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की लग रही थी। अब्रश की आंखें दरवाजे पर जमी थी, जहां से अभी अभी हैदर को जबरदस्ती ले जाया गया था। उसका दिल जैसे किसी बर्फीले शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। धड़कनें बेतरतीब थी, सांस रुक रुक कर आ रही थी और फिर
ظفر صاحب کا بھاری قدموں سے ان کی طرف بڑھنا، ان کے غصے سے دہکتے چہرے کو دیکھ کر ہی ابرش کی روح کانپ گئی۔ ان کے قدم جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی وہ شدید غصے میں ہے، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پر پڑا، جس کی شدت سے وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور زمین پر جا گری۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سر چکرا گیا۔ کمبخت لڑکی، ظفر صاحب کی دھاڑتی ہوئی آواز گونجی، اگر اب تم نے حیدر کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کی جرت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم ابھی اپنے باپ کے قہر سے واقف نہیں ہو۔ ابرش کے لب لرزنے لگے۔ وہ زمین پر پڑی سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی، خوف اور درد کی سرخی تھی۔ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی آواز میں وحشت تھی، جیسے وہ اپنی ہی بیٹی کو اپنی دشمن سمجھ بیٹھے ہوں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں بہت جلد تمہاری اس سے طلاق کراؤں گا۔ یہ جملہ کسی آندھی کی طرح ابرش کے کانوں سے ٹکرایا۔ طلاق؟ یہ کیسا فیصلہ تھا؟ یہ کیسی سزا تھی؟ بابا، اس کے لب کپ کپا گئے، مگر اس کی آواز میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے غصے کے شور کے آگے ٹھہر سکے۔ ظفر صاحب کا غصہ کم نہیں ہوا۔ ان کے ہاتھ پھر سے اٹھے ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے، مگر عین اسی لمحے رامین بیگم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کیجیے ظفر۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ماں کا خوف تھا جو اپنی بیٹی کو مزید تکلیف میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہٹو میرے راستے سے، رامین۔ ظفر صاحب کو رائے، مگر رامین بیگم نے ان کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ میں کہہ رہی ہوں بس کیجیے۔ ان کے لہجے میں عاجزی اور سختی کی آمیزش تھی۔ ظفر صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ لڑکی میری عزت کو خاک میں ملا چکی ہے، اسے مزید سر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وقت غصے کا نہیں ہے ظفر، رامین بیگم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ابھی یہاں سے چلیں۔ ظفر صاحب نے ایک آخری نظر ابرش پر ڈالی جو زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی، پھر وہ پیر پٹکتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ابرش وہیں زمین پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ رونے کی آواز دبانے کی کوشش میں اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی، اس درد کو سینے میں سمیٹنے کی کوشش کرتی رہی جو پل بھر میں اس کے اندر ترازو ہو چکا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جتنی خوبصورتی سے ان کا رشتہ قائم ہوا تھا، اب اس کا باپ اتنی ہی بدترین طریقے سے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کو خوب رونا آ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ بند تھا، مگر ابرش کے دل کے دروازے بے شمار سوالات کی دستک تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پر جمے تھے، سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھی، قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے، مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل پڑی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے گرد سجن تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اب آگے اسے صرف اور صرف رشتے کی بربادی ہی نظر آ رہی تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے نلکا کھولا۔ ٹھنڈا پانی جیسے اس کی جلتی ہوئی روح پر برف رکھ رہا تھا۔ ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہی اس کے اندر ایک سکون سا اترا، جیسے یہ پانی اس کی ساری بے بسی، بے قراری کو دھو ڈالے گا۔ وضو کرتے ہوئے جب پانی اس کی پیشانی کو چھوا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، تکلیف سے، درد سے۔ میرے اللہ! ایک سرگوشی اس کے دل سے نکلی۔ وضو کے بعد وہ خاموشی سے جائے نماز نکال کر بچھا چکی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ سیاہ حجاب اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں بے شمار جذبات امڑ رہے تھے، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے تکبیر کہہ کر نماز میں کھڑی ہو گئی۔ نماز کا پہلا سجدہ کیا تو دل کی شدت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر! یہ کہتے ہی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماتھا زمین پر رکھا اور جیسے ساری دنیا سے کٹ گئی تھی۔ یا اللہ! اس کی سرگوشی میں التجا تھی، آنسوؤں میں دعا کی شدت تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر تکلیف کا مرہم اس کے اللہ کے پاس ہی موجود ہے۔
اس لیے وہ اپنا درد لے کر اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو گئی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر چہرہ سکون کا ایک عکس بنا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے جیسے ایک معصوم بچہ اپنے رب کے سامنے فریاد رکھ رہا ہو، یا اللہ میرے باپ کے دل میں رحم ڈال دے، وہ کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں، کیوں میرے شوہر سے مجھے جدا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں حیدر سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ محبت کی معنی میں نے ان سے ملنے کے بعد سیکھے ہیں۔ یا رب مجھے میرے شوہر سے جدا نہ کر۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل میں درد کا سمندر موج تھا۔ اللہ میاں آپ سب جانتے ہیں میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، میں تو بس اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں جو میرا حق تھا، تو پھر مجھے کیوں اس محبت سے محروم کیا جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یا اللہ میں تیرے در پر بھکاری بن کر آئی ہوں، میرے رب مجھے عطا کر دے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، ہاتھ بلند تھے اور آنکھوں میں ایک امید تھی، ایک امید کہ اس کے رب اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، مگر اپنے باپ کی مخالفت نہیں کر سکتی، مگر میرے دل میں جو محبت ہے اسے کیسے نکالوں؟ اس نے سجدے میں جا کر پھر سے ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ مجھے حیدر سلیمان چاہیے، اللہ میاں وہ میرا شوہر ہے، وہ میرا نصیب ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ وہ کافی دیر تک دعا کرتی رہی، کبھی آنکھیں بند کر کے، کبھی آنسو پونچھتے ہوئے، کبھی بے بس ہو کر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر اس کے دل میں ایک روشنی جل چکی تھی، یہ یقین کہ اس کا رب اس کی دعا سن رہا ہے، کہیں نہ کہیں اسے اس کی فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب رب پر یقین ہو تو وہ یقین کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جائے نماز بیٹھی، ابرش کے دل میں سکون کی ایک نئی لہر اتری، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اندر کی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی، جسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ذہن ماضی کے دریچوں میں کھو چکا تھا۔ یادیں ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگی۔ وہ دن یاد آنے لگے جب سب کچھ ٹھیک تھا، جب اس کے بابا ظفر صاحب اور تاؤ سلیمان صاحب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہنستے تھے، کاروباری فیصلے کرتے تھے۔ سلیمان صاحب اور ظفر صاحب نہ صرف بزنس پارٹنر تھے بلکہ سگے بھائی بھی تھے۔ دونوں نے مل کر ایک کامیاب کاروبار کھڑا کیا تھا اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ رشتہ صرف ہمارے بچوں کا نہیں، ہماری نسلوں کا ہے، ظفر صاحب نے نکاح کے وقت کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بالکل، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا کاروبار ایک ہے، اور اب ہمارے بچے بھی ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں۔ سلیمان صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابرش نے پلکیں جھپکائیں، وہ لمحہ کتنا دور لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دوسرے میں محبت تھی، ہر چیز بیلنس پر تھی، لیکن پھر وہ منحوس بزنس ڈیل آئی، ایک غلط سرمایہ کاری، ایک دھوکہ، اور سب کچھ بدل گیا۔ کمپنی کو شدید مالی نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ہی دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات جنم لینے لگے۔ یہ تمہاری لاپرواہی تھی ظفر، سلیمان صاحب کی آواز گونجی تھی جب وہ آفس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میری نہیں، تمہاری غلطی تھی سلیمان، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ڈیل خطرناک ہے، مگر تم نے ضد کی۔ ظفر صاحب بھی اسی شدت سے بولے تھے، میں نے جو کیا کمپنی کے فائدے کے لیے کیا، مگر تمہیں تو صرف اپنے مفاد کی فکر ہے۔ بس کرو سلیمان بھائی، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو بہتر ہے ہم کاروبار الگ کر لیں۔ یہ جملہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس ایک جملے نے دو بھائیوں کے درمیان وہ درار ڈال دی جو کبھی پر نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ تلخیاں بڑھتی گئیں، کاروبار تو الگ ہو گیا مگر نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جب ظفر صاحب نے غصے سے اعلان کیا، اب میں ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، میں اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ ابرش نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی میں بھینچ لی، آنکھوں میں ایک اور آنسو لرزنے لگا۔ وہ دن کتنا بھیانک تھا جب اس کے والد نے حیدر کے ساتھ اس کے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
मगर हैदर वो चट्टान की तरह खड़ा था। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। ये आप दोनों के मामलात हैं, आप खुद सुलझाएं। मेरी बीवी को इन मामलात से दूर रखें। वो वैसे भी बहुत कमज़ोर है। अगर आपकी बेवजह सख्ती की वजह से उसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर की आवाज़ गूंजी थी जब दोनों खानदान आमने सामने थे। तुम्हें देनी पड़ेगी। सुलेमान साहब ने उसे घूरा था, मगर हैदर का चेहरा सख्त हो गया था। ये मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले पर कायम हूं। आप सब जानते हैं ना, मैंने पहले कभी ना किसी की सुनी है और ना मैं आप किसी की सुनूंगा। ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ था। अगर इसे ख़त्म करना भी पड़ा तो वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। किसी की मर्जी खुद पर मुसल्लत नहीं होने दूंगा। वो साफ लहजे में बोला था। जफर साहब ने गुस्से से अबरश को देखा। अगर तुम्हें अकल होती तो खुद हैदर से कहती कि तुम्हें आज़ाद कर दे, लेकिन तुम मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। बाप तो तुम्हें नजर ही नहीं आता। अबरश ने तब लफ्ज़ सी लिए थे, मगर उसका दिल हैदर के हर लफ्ज़ पर धड़क रहा था। वो अकेला सबके सामने खड़ा था, सबके खिलाफ लड़ रहा था। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर वो दुआ कर रही थी इस जंग में हैदर की जीत हो, उसकी मोहब्बत की जीत हो। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, एक ऐसे शख्स को जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था। वो किसी भी कीमत पर हैदर का हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो ये शख्स उसकी ऐसे ही हिफाजत करेगा कि कभी किसी ने ना की होगी। और एक औरत के लिए उसका मुहाफिज ही सब कुछ होता है। कमरे में रोशनी मध्यम थी, मगर हैदर सुलेमान के अंदर भड़कता हुआ गुस्सा पूरे माहौल को तैश दे रहा था। वो लंबे लंबे कदम उठाते कमरे में चक्कर काट रहा था, जैसे कोई शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी माथे की रगें तन चुकी थी, हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और चेहरे पर बेपनाह सख्ती। ये पहला मौका नहीं था जब उसने जब्त करने की कोशिश की थी, मगर अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। अचानक उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलाईं और एक मखसूस नंबर डायल किया। फोन बमुश्किल एक बार ही बजा था जब दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। सुल्तान। हैदर की आवाज में जबरदस्त सख्ती थी। जी सर। सुल्तान फौरन मुस्तैद हो गया। बस बहुत हो चुका। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यह सब ज्यादा देर नहीं चल सकता, मगर तुमने मुझे रोका कि हालात देखने दो, वक्त का इंतजार करने दो। लेकिन अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। सुल्तान एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर कदरे धीमी आवाज में बोला, सर रिश्तेदारी का मामला है। अगर आप। हैदर का सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो धाड़ा, चुप, ये सब बकवास है। रिश्तेदारी के नाम पर मेरी बीवी को कैद में नहीं रखा जा सकता। मैं उसे वहां मजीद एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। ये लोग तलाक की बातें करके उसको जहनी अजियत दे रहे हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि हैदर जो कह रहा है उस पर अमल भी करेगा। उसने कई सालों से इसके साथ काम किया था। वो जानता था कि जब हैदर कुछ तय कर ले तो उसे रोकना नामुमकिन है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, हैदर ने दोबारा हुक्म दिया। आंखों में एक बेपनाह जिद थी। जी सर, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। कल के कल कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, हैदर ने कतई अंदाज में कहा। जैसा आप कहें सर, सुल्तान ने आखिरकार मुकम्मल फरमाबरदारी से जवाब दिया। और फिर हैदर धीरे धीरे पूरा मंसूबा उसके गोश गुजार कर चुका था। वो जानता था इस मंसूबे पर अमल बेहतरीन अंदाज में महज सुल्तान ही कर सकता है, क्योंकि इस मंसूबे की खबर उसके बाप तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी थी और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था जो कर सकता था, और वो उसका वफादार मुलाजिम सुल्तान था। फोन बंद हो चुका था, मगर हैदर के अंदर का तूफान थमा नहीं था। उसकी उंगलियां अभी भी गुस्से से लरज रही थी, मगर चेहरे पर एक फैसला कुन सख्ती आ चुकी थी। अब खेल शुरू हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं था। उसने हमेशा अपने बाबा को समझाया था कि कारोबार और रिश्तेदारी दो अलग चीज़ें हैं, इन्हें अलग अलग करके अपने मामलात समझाएं। लेकिन पुराने ख्यालात के वो दोनों ही शख्स इस बात को भूल बैठे थे कि कारोबार से बढ़कर रिश्तेदारी होती है। लेकिन ना पहले कभी उन्हें ये बात समझ आई थी
और ना शायद अब आनी थी। यही वजह थी कि जब उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो अपने बाबा के बिजनेस में हाथ नहीं डाला था, बल्कि अपना एक अलग बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उसने चंद ही दिनों में काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। और अब वो पाकिस्तान के बजाय बाहर ममालिक में ज़्यादातर बिजनेस करता था, क्योंकि उसके ताल्लुकात बाहर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एक अरसा वो बाहर गुजार कर आया था, इसीलिए उसे हर तरीके मालूम थे। उसके बाबा ने कई बार उससे कहा कि मेरे बाद तुम्हारा ही है सब कुछ, लेकिन वो हमेशा उनकी बात को टाल देता और उनको कहता था कि आप खुद अपना बिजनेस संभालें, मैं अपना देख लूँगा। यही वजह थी कि वो अब तक सुकून में था, वरना कोई बैद नहीं था कि वो भी उन्हीं की तरह एक दूसरे से लड़ रहा होता। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन का अरसा बीत चुका था। किचन में हल्की हल्की खिड़कियां खुली होने की वजह से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। अब्रश अपनी माँ के साथ खड़ी सब्जी काट रही थी, जबकि शाइस्ता बेगम चूल्हे पर कुछ पका रही थी। माहौल खामोश मगर पुरसकून था। उसके दिल में एक अनजाना सा बोझ था। 2 दिन से एक अजीब उदासी छाई हुई थी, मगर वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। अचानक किचन में रखा उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन को देखा तो स्क्रीन पर आयजा का नाम जगमगा रहा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर हाथ पोंछकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसने मध्यम आवाज में कहा। अब्रश मेरी जान, क्या हाल है? दूसरी तरफ से आयजा की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। अब्रश हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ? मैं बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी बर्थडे पार्टी होने वाली है और तुम्हें हर हाल में आना है, आयजा ने जोश से कहा। अब्रश का चेहरा एकदम धुंधला सा पड़ गया। दिल में मायूसी दर आई। आयजा, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकूंगी, पापा इजाजत नहीं देंगे। ओह कम ऑन अब्रश, तुम हर बार यही बहाना करती हो। एक दिन के लिए आना है और बस। मैंने सबको इनवाइट कर लिया है, तुम नहीं आई तो मज़ा नहीं आएगा। अब्रश खामोश हो गई। आयजा की आवाज़ में खलूस था, जिद भी थी, और वो हमेशा की तरह उसे तवक्को कर रही थी कि वो मना नहीं करेगी। देखो प्लीज़ एक बार आ जाओ, आयजा ने मज़ीद कहा। अब्रश ने एक लम्हे के लिए अपनी माँ की तरफ देखा तो चूल्हे के सामने खड़ी खाने में मसरूफ़ थी। वो उनके मिजाज को जानती थी। एक हल्की सी उम्मीद उसके दिल में जागी। अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी, उसने आहिस्ता से कहा। वाह, ये हुई ना बात, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आयजा खुशी से बोली। अब्रश ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन बंद कर दिया, मगर उसके दिल की उदासी अभी भी वहीं थी। वो पलटी तो शाइस्ता बेगम उसे बगौर देख रही थी। तुम जाना चाहती हो? उनकी आवाज़ नरम थी। अब्रश ने आहिस्ता से सर हिला दिया। जी, मगर बाबा, शाइस्ता बेगम ने एक हल्की सी सांस ली। तुम चली जाना, मैं तुम्हारे बाबा को संभाल लूंगी। अब्रश का दिल एक पल को खुशी से धड़का, मगर साथ ही वो अफसरदा हो गई। शुक्रिया अम्मी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा और खामोशी से किचन से निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पर बैठ गई। एक गहरी सांस ली और नज़रें कमरे के कोने में जम गई। वो जानती थी कि बाहर जाने का फैसला आसान नहीं होगा, मगर वो खुद को बहलाने के लिए तैयार हो रही थी। अलमारी खोलकर उसने एक हल्का सा लिबास निकाला, मगर उसके दिल में अब भी बोझ था, जैसे कोई चीज़ अधूरी हो, जैसे वो कहीं और जाना चाहती हो, जैसे उसकी रूह बेचैन हो, लेकिन फिर खुद को डपट कर अपने आप में ही मसरूफ़ हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर चुका था। रात 9 बजे कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और आईने के सामने खड़ी अब्रश खुद को देख रही थी। ब्लैक फ्रॉक में वो सादगी और दिलकशी का इम्तिजाज लग रही थी। स्याह रंग ने उसके दूधिया चेहरे की चमक और बढ़ा दी थी, जबकि उसके लंबे सिल्की बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने एक लम्हे के लिए आईने में खुद को बगौर देखा, मगर उसकी आंखों में वही उदासी थी जो पिछले कई दिनों से उसके चेहरे का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन इस पल वो उदासी में भी कहर ढा रही थी। एक गहरी सांस लेते वो पलटी और कमरे से बाहर निकल आई। घर की खामोश फिजा में उसके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए दिल किया कि अम्मी बाबा को इत्तला कर दे कि वो जा रही है, लेकिन जानती थी अगर बाबा का दिमाग घूम गया तो वो उसे किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। इसीलिए उसने अपना इरादा तर्क कर दिया
और खामोशी से पोर्च की तरफ बढ़ गई। पोर्च में पहुंचकर उसने एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई। हवा में हल्की सी खुनकी थी और चांदनी ज़मीन पर फैली हुई थी। ड्राइवर पहले ही गाड़ी लिए खड़ा था। वो जानती थी ये भी उसकी माँ की वजह से ही मुमकिन हो पाया था, वरना जफ़र साहब और उसे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त दे दें, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अब्रश खामोशी से पिछली नशिस्त पर बैठ गई और नजरें खिड़की से बाहर जमा दी। गाड़ी धीरे धीरे हरकत में आई और सड़कों पर सिरकती चली गई। रास्ते में वो मुसलसल बाहर के मनाजिर देखती रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे कुछ होने वाला हो। एक अजीब सी बेचैनी। घर से निकलते वक्त उसके दिल में यकदम एक ख्याल पैदा हुआ था कि वो हैदर को इत्तला कर दे, लेकिन फिर उसने गुमान किया अगर उसने हैदर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो उसके बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसने चाहकर भी उसे मैसेज नहीं किया था। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी एक शानदार होटल के सामने रुकी। वो एक लम्हे को गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगी, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। होटल के अंदर रोशनियों का एक जहान सजा हुआ था। हर तरफ खुशी और मुसर्रत का समा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उसकी नज़रों ने एक मानूस चेहरा पकड़ लिया और वहीं उसका दिल जोर से धड़का। हैदर सुलेमान। वो बेख्तियार ठुठक गई। वो जैसे सांस लेना भूल गई। हैदर उसे देखकर एक खतरनाक मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा और अब्रश का पूरा वजूद लरजने लगा। खड़ूस, उसने दिल ही दिल में कहा, मगर हकीकत तो ये थी कि खड़ूस नहीं, ये आदमी तो बला था। आओ जाने मन। हैदर की मध्यम मगर खतरनाक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसको अब समझ आया था कि आयज़ा उसे बुलाने पर क्यों इतनी बज़िद थी, यानी उसके पीछे यही शख्स था। उसे बेहद अफसोस हुआ। अब्रश का दिल जैसे हलक में आ गया। वो पीछे हटने लगी, मगर उससे पहले ही हैदर ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। हैदर छोड़ें, वो घबरा कर बोली, मगर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। हैदर की गिरफ्त मजबूत थी और अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा झुकाया, उसका हाथ थामा और अपने लबों से लगा लिया। ये उसका पसंदीदा अमल था। वो जब भी अब्रश से मिलता था लाजमी उसके हाथ का बोसा लेता था। अब्रश का सांस अटक गया। ये क्या कर रहे हैं? वो बमुश्किल बोली, मगर उसका वजूद जैसे साकित हो चुका था। हैदर, कोई देख लेगा, वो घबरा कर बोली। शर्म से उसका चेहरा गुलनार हो गया था। बस वही जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। हैदर ने सरगोशी की और उसके चेहरे पर अपने बेबाक लबों की शिद्दत छोड़ दी। ये सब वो बिना खौफ के मेन एंट्रेंस पर कर रहा था। उसे तो बिल्कुल शर्म नहीं थी, लेकिन अब्रश शर्म के मारे मरने के बराबर हो चुकी थी। अब्रश की आंखों में खौफ की शिद्दत मजीद बढ़ गई। वो कुछ कहती, कुछ सोचती, मगर उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। एक लम्हे को सब कुछ धुंधला हुआ, जमीन जैसे घूमने लगी और फिर अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वो हैदर की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा इसके दिल के मुकाम पर था। वो उसको देखते हुए बोला था, जाने अजीज, तुम कभी ऐसे मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहते ही वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था, इस बात से बेखबर कि पीछे कैसा कोहराम मचने वाला है। लेकिन ना पहले कभी किसी की हैदर ने परवाह की थी और अब ना वो किसी की परवाह करने वाला था। उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी उसके पास थी और अब उसे किसी से कोई गर्ज नहीं थी। 6 घंटे बाद कमरे में मध्यम रोशनी थी और हर चीज़ पर सुकून सा सन्नाटा तारी था। नरम और आरामदेह बिस्तर पर लेटी अब्रश ने पलकें झपकाई। उसका जहन धुंध में लिपटा हुआ था। सर भारी हो रहा था, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। चंद लम्हे तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। दिमाग जैसे कोई भी इशारा देने से कासिर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यादों के दरीचे खुलने लगे और एक झटके से वो बेदार होकर उठ बैठी। उसका सांस बेतरतीब हो गया और आंखों में उलझन उभर आई। चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सब कुछ अजनबी लगा। बड़ा सा शीशे का दरवाज़ा, लग्जरी अंदाज में सजा कमरा,
हल्की रोशनी में चमकते सफेद पर्दे, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, सब कुछ अनदेखा और गैर मानूस था। ये कहाँ हूं मैं? दिल में एक खौफ की एक लहर उठी और उसने जल्दी से बिस्तर से उतरकर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना खौफ उसके अंदर सरायत कर चुका हो। फिर उसकी नजरें बालकनी के शीशे के दरवाजे पर पड़ी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में कदम रख दिया, और फिर जैसे उसके कदमों से ज़मीन ही निकल गई। नीचे झांकते ही दिल धक से रह गया। या अल्लाह! उसके लब कांपे। वो किसी आम जगह नहीं बल्कि 86 फ्लोर पर थी। नीचे देखते ही सर चकराने लगा। इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई! वो पीछे हटने लगी। उसकी नज़रें खुद ब खुद सामने उठ गईं और अगले ही लम्हे उसका सांस जैसे बंद हो गया। ईफल टावर! अब वो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। हकीकत पूरी शिद्दत से उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो दुबई में थी। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? उसके लब लरजने लगे, जिस्म कांपने लगा और वो बालकनी के जंगले को सर थाम कर बैठ गई। उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई थी। ये आदमी मुझे कहाँ ले आया? वो खुद से बोली। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। उसका दिमाग भग से उठ चुका था। यानी हैदर उसे दुबई ले आया था। पापा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसके आंसू बहने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि सीने से बाहर आती महसूस हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? वो बड़बड़ाई, मगर कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि जफर साहब का गुस्सा कैसा है और उनकी सख्ती कैसी। अगर उन्हें पता चल गया कि वो यूं बगैर किसी को बताए दुबई पहुंच चुकी है तो वो क़यामत बर्पा कर देंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? खौफ, बेबसी और हैरत के मिले जुले एहसासात में वो वहीं बालकनी के फर्श पर बैठी रह गई। उसकी हालत एक ऐसे पंछी की माने थी जिसके पास आज़ादी थी, लेकिन वो आज़ाद हो नहीं सकती थी, क्योंकि जो मालिक था वो उस पर सख्त नज़र गाड़ कर बैठा था। हैदर ने अच्छा नहीं किया था। यकीनन वो उसको प्राइवेट जेट के ज़रिए लाया था, जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा था। कमरे में खामोशी का राज था। अब्रश वहीं बालकनी के जंगले के साथ लगी बैठी थी। जहन परेशानियों में उलझा हुआ था। खौफ, बेबसी, हैरत, सभी जज्बात उसके चेहरे से झलक रहे थे। वो मुसलसल यही सोच रही थी कि इस सूरत हाल से कैसे निकले, पापा को क्या जवाब दे और ख़ुद को इस मुश्किल से कैसे निकाले। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी जब अचानक कमरे के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उभरी। वो चौंकी और फौरन नीचे मुड़ी। दरवाज़ा खुल चुका था और अंदर हैदर सुलेमान दाखिल हो रहा था। हाथ में कुछ खाने के थैले थे जिन्हें वो आते ही टेबल पर रख चुका था। नज़र दौड़ाई तो अब्रश उसे बालकनी में दिखाई दी। वो वहाँ बैठी थी। हैदर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आरामदेह चाल चलता उसकी तरफ बढ़ा, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, अब्रश ने तेजी से खड़े होकर रुख मोड़ लिया। आप अच्छे नहीं हैं, वो रूठे हुए लहजे में बोली। आंखों में शिकवा वाज़ेहा था। हैदर ने भवें उठाई। मुस्कुराहट और गहरी हुई। अच्छा, अब मैं बुरा हो गया? अब्रश ने मुंह फेर लिया। आपने ये क्या किया? मुझे यूं यहाँ क्यों ले आए? आप जानते हैं ना पापा क्या करेंगे? वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे हैदर। वो वाकई घबराई हुई थी। आंखों में बेचैनी थी और लहजा कांप रहा था। हैदर ने कोई जवाब देने के बजाय एक लंबा सांस लिया और एक ही लम्हे में उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब्रश की आंखें हैरत से फैल गई। वो उसके इतने करीब थी कि उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। अब आराम से सुनो। हैदर का लहजा नरम लेकिन मजबूत था। ये करना ज़रूरी था अब्रश। हमारे माँ बाप रिश्तों को पैसों से तोल रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह निकाह कोई बिजनेस डील नहीं, एक मुकद्दस रिश्ता है। अब्रश ने आंखें झुका ली। उसके दिल में तूफान था, मगर हैदर की बात में सच्चाई थी। क्या मैंने तुम्हें कभी तकलीफ दी? तुम्हें कभी ऐसा एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता? हैदर ने नरमी से उसकी ठोड़ी उठाई ताकि वो उसकी आंखों में देखे। अब्रश ने नफी में सर हिलाया। नहीं तो फिर? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
हैदर ने मोहब्बत से पूछा। अब्रश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोश हो गई। मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूं अब्रश, हैदर ने संजीदगी से कहा। मैंने तुमसे निकाह किया है और मैं उसे निभाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब्रश की आंखें नम हो गई। हैदर की बातों में सच्चाई थी और वो उसे महसूस भी कर सकती थी। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर एक गहरी सांस ली और नरमी से बोली, मुझे डर लग रहा है हैदर, पापा वाकई बहुत गुस्से में होंगे। हैदर ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। चाचू को मैं देख लूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अब्रश ने सर झुकाकर आंखें मूंद ली, जैसे हैदर की हर बात दिल पर नक्श हो रही हो। उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मंजर तब्दील हो गया था। वो उसे लिए बेडरूम की तरफ बढ़ चुका था ताकि सुकून से बैठकर खाना खा सके। कमरे में खामोशी थी, बस चम्मच और कांटे की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। हैदर और अब्रश खाने में मसरूफ थे, मगर माहौल में एक अजीब सी कशीदगी थी। अब्रश के चेहरे पर अभी भी थकन और उलझन के आसार नुमायां थे। वो हर नवाला जैसे जबरदस्ती खा रही थी, जबकि हैदर अपनी मामूल की पुरसकून अंदाज में खाने में मसरूफ था। उसकी दुनिया उसके साथ थी और अब उसे किसी से कोई गर्ज नहीं थी। वो वैसे भी अपनी चीज़ों को लेकर हद से ज़्यादा जज्बाती था। अगर कोई उससे उसकी चीज़ छीनने की कोशिश करता था तो वो सब बर्बाद कर देता था और पीछे से किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। अचानक हैदर के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। अब्रश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हैदर ने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर नज़र पड़ी, उसकी भवें तन गई। बाबा की कॉल है, उसने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा। अब्रश का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने बेख्तियार हैदर का हाथ थाम लिया, जैसे वो उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहती हो। उसकी उंगलियां हल्की हल्की लरज रही थी। हैदर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर पुरसकून अंदाज में उसे अपने करीब करके खुद के हिसार में ले लिया। अब्रश का सर उसके सीने से जा लगा, मगर उसकी आंखों में वाज़िहा खौफ था। हैदर ने एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? सुलेमान साहब की करख्त आवाज़ गूंजी। उनके लहजे में सख्ती और बेचैनी नुमाया थी। बाबा खैरियत? हैदर ने मसनूई मासूमियत से कहा, जैसे कुछ जानता ही ना हो। ये मुझसे मत पूछो कि खैरियत है या नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम जफ़र की बेटी को लेकर कहाँ गायब हो? तुमने ये क्या हरकत की है हैदर? अब्रश की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई, जैसे वो इस लम्हे किसी बड़े तूफान के गुजरने का इंतजार कर रही हो। हैदर ने पलकें झपकी, चेहरे पर हल्की सी बेनियाजी तारी की और निहायत संजीदा लहजे में बोला, जफ़र चाचू की बेटी? कौन? अब्रश? वो तो अपनी अम्मी के साथ घर में होगी, मैं कैसे जान सकता हूं कि वो कहाँ है? हैदर, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सुलेमान साहब धाड़े, जफ़र का पारा 7वें आसमान पर है। वो कह रहा है तुमने ज़बरदस्ती उसकी बेटी को ले जाकर अपनी मलकियत बनाना चाहा है। हैदर के लबों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा, मगर उसका लहजा बिल्कुल सपाट रहा। बाबा, ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है। मैंने तो अब्रश को आखिरी बार उस दिन देखा था जब आप सब घर पर थे। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे वो हैदर की बात को परख रहे हों। फिर उनकी आवाज़ में कदरे बेयकीनी आ गई। लेकिन जफ़र यकीन से कह रहा है कि तुमने उसे उठाया है। तुम भी गायब हो और वो भी कहीं गायब हो गई है। ऐसे कैसे मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाऊं? हैदर ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, बाबा, अगर मैं वाकई ऐसा कुछ करता तो क्या मैं आपसे यूं पुरसकून लहजे में बात कर रहा होता? दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी रही। तुम वाकई कुछ नहीं जानते? आखिरकार सुलेमान साहब ने कहा, जैसे उन्हें खुद भी अब शुबा होने लगा हो। बिल्कुल नहीं बाबा, अगर आप चाहें तो मेरा फ़ोन ट्रेस करवा लें या किसी से तस्दीक करवा लें। मैं तो अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सुलेमान साहब ने एक थकी हुई सांस ली। ठीक है, मगर अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने कुछ छुपाया है तो याद रखना, मैं तुम्हें खुद आकर घर वापस ले जाऊंगा और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल बाबा, आप बेफिक्र रहें, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया।
फोन बंद होते ही अब्रश ने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा। आपने इतनी आसानी से झूठ बोल दिया? आपको मालूम है जब आपका सच सामने आएगा तो कितने मसाइल पैदा हो जाएंगे? आप सब चीजें कैसे संभालेंगे? हैदर ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। ये झूठ नहीं था, बस हकीकत को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है जाने मन। अब्रश ने हैरानी और खौफ के मिले जुले जज्बात से उसे देखा, मगर हैदर के चेहरे पर साफ सुकून था। वो जानता था उसने एक बार फिर बाजी जीत ली है, लेकिन वो खुद भी जानता था कि जब हकीकत सबके सामने आएगी तो मसाइल वाकई पैदा होंगे। लेकिन वो हैदर सुलेमान था जिसने हमेशा बाजी अपने हाथ में लेने की कसम खा रखी थी, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। अब्रश की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली हुई थी। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ रही थी कि हैदर ने इतनी सफाई से झूठ कह दिया और अपने बाप को भी कायल कर लिया। उसका दिल धड़क रहा था। आपने इतनी बड़ी बात झूठ क्यों कही हैदर? उसका लहजा कांप रहा था। मैं तो आपके साथ हूं। फिर भी वो एक बार फिर से बेयकीनी से बोली। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। हैदर ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से उसके करीब आया। श्श, वो आहिस्तगी से बोला। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। ये झूठ नहीं था, बस हकीकत को अपने हक में ढाला था। मैंने वही कहा जो जरूरी था, ताकि हमें वक्त मिले। वो एक बार फिर बोला। अब्रश ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मगर हैदर ने उसकी थोड़ी नरमी से थामी और सरगोशी की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अब्रश, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब्रश की पलकें लरजने लगी। वो जानती थी कि हैदर उसके इख्तियार में नहीं था। हैदर ने आहिस्तगी से कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। कमरा हल्की नीली रोशनी में डूब गया। वो उसके करीब आया, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को नरमी से पीछे किया, फिर झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की। अब और कोई सवाल नहीं जाने मन। अब्रश ने घबरा कर नजरें चुराईं, मगर हैदर ने आहिस्ता से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और नरमी से करीब झुकता चला गया। कमरे में सांसों की सरगोशियां घुलने लगी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अब्रश नीम दराज कंबल में लिपटी पड़ी थी। उसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर रात के खुमार की हल्की सी सुर्खी बाकी थी। हैदर की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी। चंद लम्हे वो बस खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे इस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने आहिस्तगी से तकिए के पास रखना अपना मोबाइल उठाया, एक नज़र अब्रश पर डाली जो अभी भी ख्वाबीदा थी, और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही सुल्तान ने फ़ोन उठा लिया। सर, हालात बिगड़ रहे हैं। सुल्तान की आवाज़ में तशवीश थी। जफ़र साहब और आपके बाबा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जफ़र साहब का इसरार है उनके बेटे ने ही इनकी बेटी को गायब किया है, जबकि आपके बाबा मानने को तैयार नहीं। हैदर ने दांत भींच लिए। कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया मामला? सर, कोर्ट तक जा रहा है। जफ़र साहब ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अच्छा नहीं होगा। मेरा मशवरा है आप वापस आ जाएं। हैदर ने सांस ली। एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जिसे खुद को पुरसकून कर रहा हो। फिर सर्द लहजे में बोला, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और बालकनी से नीचे दुबई की चमकती सड़कों को देखने लगा। अब जंग खुलकर सामने आ चुकी थी और उसे इसका सामना करना ही था, इसलिए अब मजीद यहाँ ठहरना खतरनाक था। हैदर कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर हल्की रोशनी थी। अब्रश अभी तक गहरी नींद में थी। चेहरे पर सुकून और थकन के हल्के से आसार नुमाया थे। वो आहिस्ता से उसके करीब आया, झुककर उसे नरमी से पुकारा, अब्रश उठो, हमें जाना है। अब्रश ने करवट ली और कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया। सोने देना, सारी रात बेचैन रखा है। उसकी नींद से बोझल आवाज में शिकवा था। हैदर मुस्कुराया, फिर झुककर उसके कान के करीब बोला, हमें आज ही पाकिस्तान वापस जाना है, फौरन तैयार हो जाओ। अब्रश के माथे पर हल्की से शिकन उभरी। उसने आंखें खोली और हैरत से देखा। इतनी जल्दी? हैदर ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरी। हाँ, क्योंकि अब हमें मिलकर अपने हक में लड़ना है। मैं चाहूं भी तो अपने बाबा या चाचू के सामने खड़ा नहीं हो सकता।
हमें खुद को साबित करना होगा कि हम साथ रहना चाहते हैं। तुम्हें वहां जाकर मजबूत रहना होगा, हर सवाल का जवाब देना होगा। अब्रश ने गहरी सांस ली, हैदर की आंखों में देखते हुए सर हिला दिया। मैं तैयार हूं। कल रात जो रिश्ता उन दोनों के दरमियान हुआ था वो अब्रश को मजबूत कर चुका था। चंद घंटों बाद दुबई एयरपोर्ट पर दोनों खामोशी से इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल कर रहे थे। हैदर का चेहरा संजीदा था, जबकि अब्रश के दिल में धड़कनें तेज हो रही थीं। जहाज ने टेक ऑफ किया तो अब्रश ने खिड़की से बाहर झांका। दुबई की रोशनियां नीचे छूटती जा रही थी। हैदर ने उसका हाथ थाम लिया, नरमी से दबाया। सब ठीक हो जाएगा। सफर के दौरान दोनों कम ही बोले। हैदर गहरी सोच में था, जबकि अब्रश का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जहाज लैंड होते ही दोनों के चेहरों पर तनाव नुमाया हो गया। बाहर निकलते ही एक गाड़ी पहले से इंतजार में थी। सुल्तान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सर, सीधा घर चलेंगे? हैदर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, अब और कोई रास्ता नहीं। गाड़ी सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और अब्रश के दिल में खौफ की लहर उठ रही थी। वो जानती थी घर पहुंचते ही एक तूफान खड़ा होने वाला है, लेकिन दिल में यकीन था, एक रिश्ते की मजबूत डोर अब उसके हाथ में थी। जब गाड़ी हैदर के घर के अंदर दाखिल हुई तो गेट पर ही सख्त कशीदगी का माहौल था। वो लोग अंदर बढ़ गए। सुलेमान साहब और जफर साहब दोनों गुस्से में खड़े थे। जैसे ही हैदर और अब्रश अंदर दाखिल हुए, जफर साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। ये क्या तमाशा है? वो धाड़े। तुम मेरी बेटी को जबरदस्ती ले गए। देखा सुलेमान, मैं बोल रहा था तुम्हारा बेटा कल्प्रिट था। सुलेमान साहब ने भी गजबनाक नजरों से हैदर को देखा। तुमने हमें धोखा दिया हैदर। हैदर ने लब भींच लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अब्रश एक कदम आगे बढ़ी और मजबूत लहजे में बोली, बस बहुत हो चुका बाबा। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। ताऊ, आप भी बस कर दें, खुदा के लिए। अब्रश का लहजा लरज रहा था, मगर वो बोलती रही, आप दोनों ने अपनी मर्जी से हमारा निकाह करवाया था, फिर आप क्यों हमें जुदा करना चाहते हैं? क्या निकाह कोई खेल है? जफर साहब का चेहरा सख्त था, मगर वो खामोश रहे। अब्रश ने कुरान की तरफ इशारा किया जो सामने मौजूद एक शेल्फ पर रखा था। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकद्दस बनाया है। उन्हें अलग करना गुनाह है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो जुल्म के मुर्तकिब होते हैं। आप लोग किस हक से हमारे दरमियान दीवार खड़ी कर रहे हैं? सुलेमान साहब ने नजरें चुराई, मगर अब्रश रुकने वाली नहीं थी। भाई भाई के लिए कुर्बानी देता है, दुश्मनी नहीं पालता। अल्लाह ने फरमाया है आपस में भाईचारा रखो, एक दूसरे का साथ दो, मगर आप दोनों ने कारोबार के लिए अपनी औलादों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जफर साहब का चेहरा नरम पड़ने लगा। वो बेबसी से अपनी बेटी की आंखों में देख रहे थे जो आंसुओं से भरी हुई थी। सुलेमान साहब ने गहरी सांस ली। हमने वाकई गलती की। अब्रश ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ बाबा, और अब वक्त है कि आप अपनी गलती सुधारें। हमें जुदा ना करें, हमें जीने दें, खुदा के लिए। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों के बाद जफर साहब ने कदम आगे बढ़ाया और भाई के सामने आकर सर झुका दिया। भाई, मैंने बहुत गलत किया, माफ कर दो। न जाने क्यों अब उन्हें यह सब कुछ रेत की मानंद फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। सुलेमान साहब ने लरसते हाथों से अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। नहीं, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। हमने अपनी दुश्मनी में अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी। महज एक दिन इन दोनों का गायब होना दोनों भाइयों को एक कर गया था। अब्रश की आंखों से आंसू बहने लगे और हैदर ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। पूरा घर उस लम्हे खुशी और जज्बात की शिद्दत में डूब चुका था। एक गलती जो सालों पुरानी थी आज खत्म हो चुकी थी। हैदर ने मुस्कुराकर अब्रश की तरफ देखा जो खुशी और जज्बात के इम्तिजाज में खड़ी थी। ये एक नया आगाज था, एक मोहब्बत भरा, खुशियों से भरा आगाज। और बेशक जब तक इंसान अपने हक के लिए नहीं बोलता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔